بتایا گیا تھا کہ آج کے سیشن میں پہلے ہمیں پریس اور پبلیکیشن کے بارے میں سوچنا ہوگا. ویسے پریس اور پبلیکیشن کا معاملہ تو کچھ ایسا ہے کہ بہت سے ساتھی اس پہ بولنا چاہیں گے اور پولیٹیکل ایکشن اور پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں بھی بہت سے ساتھی بولنا چاہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ساتھی جلدی واپس بھی جانا چاہیں گے، کیونکہ جب گروپ ڈسکشن کے لیے میں سوچتا ہوں تو میرے پاس پہلے ہی بہت سی ایسی ریکویسٹ آئی ہے کہ پہلے ہمیں لے لیں، ہمیں جلدی جانا ہے، اور دوسرے طرف سے ریکویسٹ آتی ہے کہ پہلے ہمیں لے لیں، اور اگر 15 تاریخ کو ہی اگر ختم ہو جاتا ہے تو سارے کے سارے جانا چاہیں گے. اور اگر میرے بس کی بات بھی ہوتی تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں کم سمے میں بہت زیادہ کام کرنا ہے، تو 16 کی تک بات نہ بڑھا کر 15 کو ہی گروپ ڈسکشن کمپلیٹ کر دیا جاتا. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو جنرل ڈسکشن ہے، اگر اس کے بعد گروپ ڈسکشن نہیں ہوتا تو ہماری بات سرے تک منزل تک نہیں پہنچ سکتی ہے، کیونکہ پنڈال میں اوپن سیشن میں جو بات ہوتی ہے وہ تو جنرل نیچر کی بات ہوتی ہے، لیکن کمٹمنٹ نہیں ہوتا. تو جنرل ڈسکشن میں کا ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ بڑے پیمانے کے اوپر سب ساتھی اکٹھے مل کر جو ہماری سوچ ہے اس سوچ کے بارے میں سوچ وچار کرنا یہ پہلے بہت ضروری ہوتا ہے. تو پھر اس دائرے کے اندر کمٹمنٹ کس ویکتی کا، کس ریجن کا، کن لوگوں کا کتنا ہوتا ہے، کس موقع کے اوپر کن ساتھیوں کی کتنی تیاری ہے، تو اس کے حساب سے ہوتا ہے. تو اس لیے جنرل ڈسکشن کے بعد گروپ ڈسکشن کا ہونا کمٹمنٹ کے لیے یہ بڑا بھاری ضروری ہے، کیونکہ تبھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں بوجھ تو بہت اٹھانا ہے، تو آج ہمارے ساتھیوں کا کتنا کمٹمنٹ ہے، کتنا بوجھ اٹھانے کے لیے ان کا کمٹمنٹ ہے، کتنے ان کی تیاری ہے. تو یہ ان سے بات چیت کرنے کے بعد ہی معلوم ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں آپ لوگوں سے پہلے ہی یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ جن ساتھیوں نے کچھ کمٹمنٹ کرنا ہے اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے، چاہے وہ پبلیکیشن کی بات ہے، نیوز سروس کی بات ہے، یا پولیٹیکل ایکشن کی بات ہے، تو دونوں کے بارے میں کمٹمنٹ کا ہونا یا ذمہ داری کتنی نبھائی جا سکتی ہے، تو اس بات کا ہونا بڑا ضروری ہے، تاکہ ہم ایک ایک کو کا اندازہ لگا کے، جگہ جگہ کا اندازہ لگا کے تو پورا بوجھ کتنا اٹھا سکتے ہیں، تو اتنا ہی اٹھانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ اگر اس سے زیادہ کے لیے اٹیمپٹ کیا جائے اور فیلئر ہو، ناکامیابی ہو، تو اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے میں ساتھیوں سے اپیل کروں گا کہ ایک تو ہم کوشش کریں گے کہ اس جنرل ڈسکشن کو زیادہ لمبا نہ کریں، تاکہ ہمارے پاس کمٹمنٹ کے لیے یا گروپ ڈسکشن کے لیے زیادہ سمے بچ سکے. لیکن پھر بھی
ये सारे का सारा ग्रुप डिस्कशन 15 तारीख को ही कंप्लीट नहीं हो सकता है। इसलिए कुछ साथियों की, खासकर जिन साथियों ने अपने टिकट वगैरह 17 के लिए बुक किए हैं या 18 के लिए किए हैं, बाद में किए हैं, तो उन साथियों को ग्रुप डिस्कशन के लिए 15 की शाम या 15 की रात को नहीं बल्कि 16 के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसलिए मैं अभी आपका ज्यादा समय न लेकर और इस जनरल डिस्कशन को भी ज्यादा समय न देकर फिर भी उसी लाइन के ऊपर, जिस लाइन के ऊपर कल हमने सोचा था कि प्रेस और पब्लिकेशन के बारे में, तो साथियों से पहले सेशन में उसके बारे में सोच विचार होगा। मेरी तो बड़ी तमन्ना थी कि अगर वैसे हमें किसी न किसी मौके के ऊपर ये करना ही होगा कि प्रेस और पब्लिकेशन के लिए अलहदा मीटिंग बुलाकर, बड़ी मीटिंग बुलाकर, जिसमें हर किस्म के लोग इन्वॉल्व हों, पब्लिकेशन को प्रोड्यूस करने वाले, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, पढ़ने वाले, लिखने वाले, पढ़ने वाले और फंड सप्लाई करने वाले, ये सारे लोग मिलकर अगर एक कोऑर्डिनेशन के साथ, कोऑपरेशन के साथ चलेंगे तो तभी हम कामयाब हो सकेंगे। तो इसलिए जिस तेजी के साथ हमने प्रेस और पब्लिकेशन को आगे बढ़ाना है, जिसका जिक्र काफी लंबे हफ्ते तक मैंने कल किया है, तो उस में हम तभी कामयाब हो सकेंगे अगर इस किस्म का कमिटमेंट और कोऑपरेशन सारे पहलुओं से होगा। तो इसलिए साथियों, इस किस्म का लंबा डिस्कशन, लंबी सोच विचार, जो कि जरूरी तो बहुत है, वो इस सेशन में नहीं, इस मौके पे नहीं, बल्कि अलहदा में हमें करना होगा ताकि सब साथियों का समय उसमें खराब ना हो। तो ऐसे ही साथियों को उसमें बुलाया जाएगा तो जिनका कमिटमेंट हम सिक्योर करके बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं प्रेस और पब्लिकेशन के मामले में। तो इस मौके के ऊपर बात को छोटी करने के लिए तो मैंने ऐसा फैसला लिया है कुछ साथियों से बातचीत करने के बाद कि आज हमारा जो प्रेस और पब्लिकेशन है वो 3 सेंटर से ज्यादा सक्सेसफुली चल रहा है, दिल्ली, नागपुर और चंडीगढ़। दिल्ली, नागपुर और चंडीगढ़ 3 सेंटर से वो सक्सेसफुली, या जिस तरह से हम चाहते हैं लगभग उस तरह से चल रहा है। वैसे तो दूसरे सेंटर्स हैं, उनसे भी, उनकी तरफ से भी कोशिश चल रही है, लेकिन वो कोशिश उतनी कामयाब नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। और ये पॉसिबिलिटी है कि ये तीनों सेंटरों से इंस्पिरेशन लेकर तो बाकी जो सेंटर चल रहे हैं वो भी जल्दी से जल्दी तेज हो जाएं और नए सेंटर उसमें और जुड़ जाएं। तो ये तो हमें इसी साल में 84 में करना होगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो सेंटर हमारे सक्सेसफुली चल रहे हैं, कामयाबी के साथ चल रहे हैं, तो उन सेंटर से ही हमारे 3 साथी अपने ख्यालात हम सबके सामने रखेंगे। उन ख्यालात में पब्लिकेशन को चलाने में शुरू से अब तक किस किस्म की दिक्कत महसूस हुई है और उन दुख तकलीफों का मुकाबला करके तो किस तरह से कामयाबी हासिल की गई है और किस तरह से बात को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। और सिर्फ उन सेंटर में ही नहीं बल्कि उन सेंटर्स को रैलिंग पॉइंट मानकर
बात को बाकी जगह के ऊपर भी कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो मैं समझता हूं इस किस्म के ख्यालात ये 3 सेंटर से अगर आते हैं तो बात भी हम थोड़े समय में पूरी कर पाएंगे और एक सोच विचार सारे साथियों में आज से ही पैदा हो जाएगा और उनके जो ख्यालात होंगे वो चर्चा का विषय बनकर कुछ न कुछ उससे बात आगे बढ़ेगी। बहुत से साथी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उनका कमिटमेंट दूसरे के मुकाबले में कम क्यों है और उनके सेंटर कमजोर क्यों चल रहे हैं। तो वो जो कामयाबी से चलने वाले सेंटर्स हैं उनसे सबक सीख कर तो वो भी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश में लग सकते हैं। तो इसलिए इन 3 सेंटर से ही साथी अपने ख्यालात रखेंगे और ये हमारा सेशन लगभग 11 बजे तक चलेगा। उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक होगा। हमें ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। 15 मिनट के ब्रेक के बाद तो फिर लगभग 1.5 घंटे का सेशन पॉलिटिकल एक्शन और पॉलिटिकल पार्टी के बारे में होगा। तो इस तरह से आज की कार्रवाई को और उसके बाद डिस्कशन को राउंड अप करने के लिए फिर मैं आपका समय लूंगा, ज्यादा नहीं, लगभग आधे घंटे का समय मैं भी समझता हूं कि जरूरी होगा डिस्कशन को लूज या खुला ना छोड़कर उसको राउंड अप करना जरूरी होगा। तो इसलिए आधे घंटे का समय मैं भी बाद में लेना चाहूंगा और उसके बाद फिर हम ग्रुप डिस्कशन के लिए फ्री हो सकते हैं ताकि हम आज और कल के समय में तो कितना कमिटमेंट होता है उसका जायजा मुझे अच्छी तरह से मिल जाए। उन साथियों को जिनका बड़ा कमिटमेंट होगा और दूसरे साथियों के भरोसे के ऊपर होगा तो उनकी समझ में पूरी बात आ जाए और उसके हिसाब से वो बात को आगे बढ़ाने की कोशिश में जल्दी से जल्दी लग जाए। तो इस किस्म का प्रोग्राम अब हमारे सामने है। तो इसलिए इसको पूरा करने के लिए मैं मिस्टर राम खोबरागढ़ को जो दिल्ली का हमारा प्रेस और पब्लिकेशन चलाने के बारे में जिनको ज्यादा जानकारी है तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इन चीजों को, इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैं फिर रिपीट करूंगा कि किस किस्म की दिक्कतें, किस किस्म की मुश्किलें आई हमें प्रेस और पब्लिकेशन को चलाने में और किस तरह से उनको ओवरकम करने की कोशिश की गई, कितनी सफलता हुई हमें और किस तरह से आज पोजीशन है और आगे से उसको कैसे हम तेजी से बढ़ा सकते हैं। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वो चंद मिनटों में अपने ख्यालात आपके सामने रखेंगे। मिस्टर राम खोबरागढ़। अभी हमारे संस्था के अध्यक्ष कांशीराम जी तथा सभी अखबार के जो एडिटर और पब्लिशर है कांशीराम जी, उन्होंने हमारी जो पब्लिकेशन है तो इसको हमने किस तरह से सक्सेसफुली रन करना है इसके संबंध में आप लोगों की तरफ से कमिटमेंट लेने के पहले वो इन पब्लिकेशंस को चलाने में क्या डिफिकल्टीज आई, हमने उसको किस तरह से उसको ओवरकम किया और आगे हम किस तरह से उसको हमने कामयाब करना है इस संबंध में आप लोगों के सामने मुझे विचार रखने का आदेश दिया। तो मैंने जो डिफिकल्टीज दिल्ली से या हमने जो डिफिकल्टीज दिल्ली से मतलब अनुभव की, जो मुश्किलें आई, तो वो मैं आप सब लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे जो पब्लिकेशंस है ये मिशनरी पब्लिकेशंस है। ये जो मार्केट में दिखते हैं
या जो बाजार पब्लिकेशन है, जैसे आप देखते होंगे, या जो सेठियों के अखबार या पत्रिकाएं हैं या सेठियों की ये पब्लिकेशन नहीं है, बल्कि ये मिशनरी पब्लिकेशन है, जिसका सहयोग और योगदान मिशन को बनाने में, आगे बढ़ाने में और कामयाबी की ओर ले जाने में बहुत बड़ा है, हो सकता है और होना चाहिए। तो इसलिए मिशनरी पब्लिकेशन और कमर्शियल पब्लिकेशन, ये दो बातों को ध्यान में रखकर ही हमने अपनी बात को आगे बढ़ाना है। अगर हम ये सोचें कि हमारे पब्लिकेशन भी सेठियों के जैसे कमर्शियल पब्लिकेशन अगर क्यों नहीं बनते, तो जैसा कि कल आपको उन्होंने अपने भाषण में बतलाया कि टाटा और बिरला के जो अखबार चलते हैं, तो उनके पास में तो करोड़ों रुपया है और लगे हाथ उनके पास में बिल्कुल तैयार है। हमारे पास में भी करोड़ों रुपया है, लेकिन हमको लोगों से इकट्ठा करना है, पर उतना ही कि उनके हाथ में हमें इकट्ठा करना है। तो इसलिए हम ये सोचे कि वो करोड़ों रुपया उनके पास में है और वो उनके लिए आसानी हो रही, तो हमें भी उतनी ही वो आसानी आ जाएगी। आसानी तो हमें आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास में जो साथी है वो टाटा और बिरला के जो साथी है या उनके साथ में मिलकर जो काम करने वाले हैं, वो पैसे पे काम करने वाले नहीं है, यहाँ तो पैसा दे के काम करने वाले हैं। तो ये दो बातों का जो अंतर है, इससे हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हम सिर्फ सेठियों का मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे, बल्कि उनको हम पछाड़ भी सकते हैं। इस संबंध में मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जो मैंने काशीराम जी से ही सुना। तो जब हमने नया नया बांसठ का कारोबार शुरू किया था पूना में, तो वो हमने घर में ऑफिस शुरू करना था। तो ऑफिस शुरू करने के लिए जब बांसठ के लोग घर में कोशिश कर रहे थे, तो उसी समय पे हमारे पूना के दूसरे एक साथी है, जिनका नाम भाई वज्जा है और जो समाजवादी मूवमेंट से संबंधित है, तो वो लोग भी उधर में अपना एक ऑफिस शुरू करने की बात सोच रहे थे। तो इत्तेफाक से उनकी मुलाकात काशीराम जी से हो गई। तो बात चली, तो तब उन्होंने ये कहा कि भाई हम घर में एक ऑफिस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं ऐसा आदमी देख रहा हूँ कि जो ऑफिस भी चलाए और साथ साथ में उसको चलाने के लिए पैसा भी दे। तो भाई वज्जा को बड़ा ताजुब हो गया, बोले भाई ऐसा आदमी आपको कैसे मिलेगा? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो ऐसे आदमी की तलाश में हूँ कि, और मुझे उम्मीद है कि वो आदमी मिल जाएगा। लेकिन जो हमारे पुणे के दूसरे साथी थे भाई वज्जा, उन्होंने ये कहा कि हम ऐसे आदमी की तलाश में है कि जिसको हम पैसा दे सके और वो हमारा ऑफिस चला सके। बात नहीं खत्म हो गई। कुछ दिन के बाद में ऐसा टाइम आ गया कि काशीराम जी को ऐसा आदमी मिला जो पैसा भी दे सकता था और ऑफिस भी चला सकता था। लेकिन जो भाई वज्जा है, उनको पैसा देके भी ऑफिस चलाने वाला आदमी नहीं मिला। तो मैं आपको ये बात इसलिए बताया कि हमारे जो अखबार है, हमारे जो पब्लिकेशन है, ये मिशनरी पब्लिकेशन है। तो इसलिए इसमें सिर्फ पगारी लोग नहीं होंगे, बल्कि पैसा देके उसको चलाने के लिए कमिटमेंट करने वाले लोग होने चाहिए और उनकी जरूरत है। आज जो हमारे पब्लिकेशन चल रहे हैं, जिसमें मासिक पत्रिका है दी ऑपरेशन ईयर, जिसको हमने 1979 में 1980 में 14 अप्रैल को शुरू किया था। ये हमारा पहला पब्लिकेशन है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि बामसेट के शुरू होने के बाद में हमने इसको शुरू किया था। और ये हमारा पहला पब्लिकेशन, आज उसको 5 साल पूरे हो गए, मतलब कल 5 साल पूरे हो गए, आज 6ठे साल में उसमें प्रवेश किया है। और अगर आप देखते होंगे तो जो पहला वो जो मैगजीन निकला है, शायद उसमें से यहाँ जो साथी बैठे हैं, तो हो सकता है कई साथियों ने जो पहला इशू था वो नहीं देखा होगा, या वो देखने को शायद नहीं भी मिला होगा, क्योंकि उसकी कॉपीज हमने बहुत ही कम छापी थी। 2000 में उसको शुरू किया था। लेकिन वो पहले इशू के बाद में अगर आज आप वो इशू देखते हैं, तो इन 6 साल के अंदर में उसमें काफी अंतर आ गया। क्योंकि प्रेस और पब्लिकेशन के बारे में वैसे हम बिल्कुल ही नए नए आदमी हैं, और उस समय भी 6 साल के पहले तो बहुत ही नए थे, क्योंकि हमारे समाज में ऐसी बात कभी होती हुई नजर नहीं आई। बाबा साहब के जमाने में वो अकेले थे, उनके साथ में पढ़े लिखे लोग भी बहुत कम थे, इसलिए जैसे भी हालात में उनको संभव हो पाया, उन्होंने मुकनायत से शुरू करके प्रबुद्ध भारत तक उसको ले आए। मतलब जो बोल नहीं सकते थे, वहां से चलकर वो
वहां उस मंजिल तक वो ले आए कि जहां लोग सोचने समझने के लिए अपने आप को काबिल समझ पाए। लेकिन हमने जब इसको शुरू किया, मैं ये कह रहा था कि हमने जब इसको शुरू किया तो प्रेस और पब्लिकेशन का हमें कोई ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी हम जिस डिटर्मिनेशन से या जिस कमिटमेंट के साथ में इसको हम चलाना चाहते थे, तो वो कमिटमेंट हमारे साथियों में थी और हमारी जो प्रेरणा थी हमारे संस्था के अध्यक्ष काशीराम जी, तो इनकी प्रेरणा और साथियों का कमिटमेंट के कारण हम उसको 6 साल में काफी उसके अंदर में इम्प्रूवमेंट कर पाए। 2000 से हमने उसको शुरू किया था, लेकिन आज वो 5000 से भी ऊपर सकता है। जैसा कि आप लोगों ने अंग्रेजी कभी ऑपरेशन में देखा है और साथी हर माह में उसको देखते हैं, बड़े बेताबी से उसका इंतजार भी करते हैं, लेकिन उसको वो आपके हाथ में निकल के जब आता है तभी आप उसका अनुभव लगा सकते हैं। लेकिन वो प्रिंट होने तक का या उसको प्रिंट करके आपके हाथों तक का पहुंचाने में उसमें कई दिक्कतें जो उसको चलाते हैं तो वो रियलाइज करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी साथी उसको शेयर करें तो आपकी तरफ से भी उसको चलाने में, कामयाबी से चलाने में काफी सहयोग मिल सकता है। जैसा कि ऑपरेशन जो है बहुजन संगठन है, ये हिंदी और इंग्लिश का जो एक वीकली और एक मंथली अभी तक काम दिल्ली से चलाते रहे और सक्सेसफुली उसको चलाते रहे, लेकिन उसको चलाने में हमें काफी दिक्कतें आई। जैसा कि अभी इंग्लिश के अखबार के बारे में आपसे बात करूंगा। अभी इसको लिखना है, जो हमारे पास में न्यूज, क्योंकि हम जो अखबार में छापते हैं वो न्यूज होती है या वो समाचार होते हैं या वो लेख होते हैं कि जो आम अखबारों में नहीं आते, और हमारे साथी उसका इसलिए इंतजार करते हैं क्योंकि उनकी अपनी खबर इस समाचार पत्रों के माध्यम से उनको मिलती है। जो समाचार पत्र आज के कमर्शियल है या जो सेठियों की है, उसमें हमारे लोगों की या हमारे मिशन से संबंधित कोई खबर कभी छपती नहीं है। लेकिन हमारे अपने अखबार में भी जो खबरें छपने की है, जो बातें उसमें छप के आप लोगों तक पहुंचनी की है, जिसके माध्यम से हमारा मिशन आगे बढ़ सकता है, अगर वो सही ढंग से या सही समय पे हमारे पास में अगर ना पहुंचे तो वो अखबार आपको सही समय पे देने के लिए हमें भी काफी दिक्कत होती है। इसलिए जो साथी हमारे जगह जगह पर बैठे हैं, हर यूनिट में बैठे हुए हैं, अगर वो साथियों का हमें बराबर सहयोग रहा, सहयोग इसलिए कि जो एक्टिविटीज हमारे समाज में चल रही है, हमारे मिशन की जो थ्रू सारे इंडिया में जो एक्टिविटीज चल रही है, जो गतिविधियां चल रही है, अगर उन गतिविधियों की जानकारी समय पर हमारे पास में नहीं पहुंचती है तो हम समय पर उसको लोगों तक का नहीं पहुंचा पाते। और जब जो चीज समय पर लोगों तक का नहीं पहुंच पाएगी तो उसका असर कम होते जाता है। अगर जो चीज लोगों तक का समय पर नहीं पहुंच पाती है तो उसका असर बहुत कम हो पाता है, कम हो जाता है। इसलिए जो भी हमारी गतिविधियां सारे हिंदुस्तान में चल रही है, उन गतिविधियों की रपट अगर हमारे पास में सही समय पर आ जाती है तो उसको सही समय पर लोगों तक का पहुंचाने में काफी सहयोग मिल सकता है। लेकिन जैसा कि मैं पिछले 6 साल से देख रहा हूं और अनुभव कर रहा हूं, इस मामले में काफी दिक्कतें आई है। यहां से हम लोगों को, अपने साथियों को टेलीग्राम करके तार भेज के ये कहना पड़ता है कि आप अपनी रिपोर्ट और फोटोग्राफ हमारे तक का तुरंत भिजवाएं। अभी आपको पता है कि दिल्ली में जो प्रेस एंड पब्लिकेशन का काम चलता है या दूसरी भी जो एक्टिविटी चलती है, तो उसमें हम लोग तो ज्यादा बिजी रहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारे बगैर के हमारे जो साथी जगह जगह पर है, जिन समय में पर्सनली भी कई तरह पे बातचीत की है, उनसे रिक्वेस्ट भी किया है कि आप अगर अपनी रिपोर्ट या गतिविधियों का लेखा जोखा अगर हमारे पास में समय पर देख पाए और वो भी सही ढंग से। अभी आप देखते होंगे कि ऑपरेशन इंडिया बहुजन संगठन के अंदर में जो रिपोर्टिंग आती है, मैं ये नहीं कह सकता दावे के साथ में कि वो बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि उसमें काफी त्रुटियां रह सकती है, लेकिन त्रुटियों के लिए भी कारण है। क्योंकि यहाँ जो पब्लिकेशन का काम देखते हैं वो बहुत ही कम साथी है। दुर्भाग्य से हमारा एक साथी जो मेरे साथ में मिलकर में काम करता था, मिस्टर MP सिंह, उनका ये अक्टूबर के अंदर में लास्ट एक कार एक्सीडेंट के अंदर में जहां देने के बाद में, तो यहाँ मेरे लिए काफी मुश्किल से अनुभव होने लगी थी, क्योंकि प्रेस एंड पब्लिकेशन के काम में उनका मुझे बहुत बड़ा सहयोग था। अगर वो साथी
आज ये डेली न्यूज़पेपर के मौके पर अगर मैं होते तो शायद मुझे जितनी खुशी हुई मुझसे भी ज्यादा वो खुश नजर आते हो। तो वो साथी के गुजर जाने के बाद में मैंने काफी दिक्कत महसूस की, फिर भी कांशीराम जी की प्रेरणा मेरे साथ में थी। तो इसलिए मैंने उनसे ये कमिटमेंट कर दिया था कि इस साल हमने एक भी इशू इसका ड्राफ्ट नहीं करने का है। और आपने देखा होगा कि 1980 में जब से हमने बहुजन संगठन शुरू किया है तो कभी भी हम पूरे 52 इशू नहीं निकाल पाए थे, लेकिन 1983 के अंदर में या पिछले एक साल के अंदर में हमने बहुजन संगठन के पूरे 52 इशू निकाले। लेकिन ये चलाने के लिए जिस तरीके का सहयोग चाहिए, एक तो हमें उसको एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि मैं तो हिंदी भाषी हूँ नहीं, शायद मैं हिंदी जो आपके सामने बोल रहा हूँ उसमें भी आप लोग ये समझने में दिक्कत में महसूस करें, क्योंकि अंग्रेजी की भाषा मतलब उसके साथ साथ मिलाकर मैं बात कर रहा हूँ। तो लेकिन हिंदी अखबार चलाने के लिए तो जो हिंदी भाषी लोग हैं ज्यादातर या नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं हिंदी में मायने या हिंदी को समझ सकते हैं, तो ऐसे साथियों का जितना सहयोग मिलना चाहिए था उतना सहयोग अभी तक का मिल नहीं पाया। पहले भी मैंने एक बार साहब से कहा था कि हिंदी भाषी प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, लेकिन इसमें से कोई भी साथी ऐसा स्वयं अपने आप को ऑफर करने के लिए अभी तक आया नहीं कि हम लोग तैयार हैं और इस काम को चलाने के लिए आप हमें कुछ काम बताइए। अगर कोई साथी, क्योंकि ये प्रेस एंड पब्लिकेशन का जो काम है तो ये स्पेशलाइज जॉब है, ये कोई आम काम जैसे नहीं है कि जिसको चलते फिरते किया जा सकता है। इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन की, नॉलेज की, लर्निंग की और फिर उसके बाद में एनालिसिस करके उसको प्रोजेक्ट करने, मतलब कई पहलुओं की इसके अंदर में जरूरत है। तो इसके लिए मतलब हम आदमी को तैयार कर सकते हैं अगर हमारे पास में कमिटमेंट के साथ में आदमी आ जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई हम इस काम को करने के लिए तैयार है, तो आदमी को तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन इस काम को करने के लिए उनकी तैयारी की है, क्योंकि ये कई पहलुओं से इसको करना होता है। तो हिंदी के अखबार चलाने में हमें यहाँ से जो नॉर्थ इंडिया के साथी खासतौर पे, तो इनमें से कई साथियों की अब तक जरूरत महसूस होती रही, लेकिन फिर भी ये वीकली अखबार था, तो वीकली अखबार को तो हम किसी तरह से चलाते रहे, अब भी चलाते रहेंगे। और अब तक का जो उसका हमने स्टैंडर्ड इंप्रूव किया है, या 1980 में जब हमने उसको शुरू किया तब से लेकर आज तक का उसमें जो भी लगातार हम इम्प्रूवमेंट करते रहे, उससे भी आगे और बढ़ते और ज्यादा उसको स्टैंडर्ड और मतलब स्टैंडर्ड का हम वीकली बना सकते हैं। लेकिन आप लोगों का उसके लिए सहयोग बहुत जरूरी है। तो सहयोग में मैंने आपसे ये कहा कि एक तो समय के ऊपर में जो समाचार हमारे मिशन से संबंधित है या समाज से संबंधित है, वो अगर हमारे पास में आ जाते हैं तो उससे हमें उस बात को अपने लोगों तक का पहुंचाने में समय पर आसानी हो सकती है। दूसरी बात, अगर उसको हम सही ढंग से लिखकर भेजते हैं, क्योंकि कई साथियों ने जो रिपोर्ट भेजते हैं या जो भी लेख या कविताएं भी भेजते हैं हमारे पास में, अगर उसके बारे में मैं बताऊं तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसको दोबारा लिखने के लिए हमारे पास में इतना टाइम नहीं होता है, इतना समय नहीं होता है कि हम उसको दोबारा अच्छे अक्षरों में और सही ढंग से लिख के पेज में दे सके, क्योंकि उसी काम को हमको दोबारा करना पड़ता है। तो अगर हमारे साथी जो जगह जगह पर बैठे हैं वो उसको सही ढंग से लिखकर और स्पष्ट अक्षरों में लिखकर अगर उसको भेजते हैं तो उसको और आगे बढ़ाने में हमें काफी उनका सहयोग हो सकता है। तीसरी बात, जो उस अखबार को लोगों तक पहुंचाने की है, तो हमारी ये कोशिश निरंतर लगातार हमारी कोशिश रहती है कि अखबार हम सही समय पे लोगों तक का पहुंचा सके, और वो कोशिश भी हम करते आ रहे हैं। लेकिन जो हमारे हाथ में है वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे हाथ नहीं है तो उसको करना हमारे लिए मुश्किल है। जैसा कि डिस्ट्रीब्यूशन का है, हम यहाँ से अखबार तो बिल्कुल जिस डेट में भेजना चाहिए उस डेट में यहाँ से हम उसको डिस्पैच कर देते हैं, लेकिन वो लोगों तक का पहुंच नहीं पाता है। हमारी ये कोशिश है कि वो लोगों तक का सही समय पे या जो समय है उस समय के अंदर ही वो पहुंच जाना चाहिए। फिर भी जो पोस्टल सर्विसेज में डिले होता है, अगर इसकी जानकारी हमें हमारे साथियों की तरफ से सही समय पे और बराबर आती है तो उसके ऊपर में भी हम कुछ कार्रवाई करके उसको हम लोगों तक का पहुंचाने में कुछ कर सकते हैं। तो ये जो दोनों अखबार है
हिंदी, बहुजन संगठन और ऑपरेशन इंडिया। तो इसमें जो इसके लगभग 3 पहलू के ऊपर में मैं आप लोगों से बात करूंगा। एक तो इसको हमने तैयार करना है। तैयार करने का मतलब यह है कि उसका प्रोडक्शन साइड, तो उसको करने के लिए हमें एक तो सही ढंग से उसको लिखने वाले आदमियों की जरूरत है, हमारे साथियों की जरूरत है। अगर जो पूरी तरह से तैयार नहीं है तो उनको तैयार तो किया जा सकता है, लेकिन एक तो लिखने वालों की जरूरत है जो उसको सही ढंग से लिख के लोगों तक पहुंचा सके। दूसरी बात, अभी जो हम अखबार निकालते हैं, अभी तो हमने कल से हमारा अपना प्रेस दिल्ली में शुरू किया है, लेकिन इसके पहले हम जहां से भी इस अखबार को छापते रहे तो वो किसी और का प्रेस था, वो प्रिंटिंग प्रेस। तो आप जानते हैं कि जहां और लोगों से काम लेने की बात हो जाती है तो बड़ी मुश्किल आती है, क्योंकि दूसरे के प्रेस में छापने के बाद, दूसरे के प्रेस में छापने से तो कई तरह की दिक्कतें आती है। तो हम ये चाहते कि अगर हमारे अपने साथी, जैसे उसको कंपोजिंग है और उसको प्रिंटिंग है, ये तमाम काम करने के लिए अगर हमारे अपने साथी तैयार हो जाते हैं, मिश्रण लोग तैयार हो जाते हैं, तो हम ये अखबार बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे स्टैंडर्ड के साथ में अपने लोगों तक पहुंचा पाएंगे। आज भी हमारी कोशिश है कि हम उसको अच्छी तरह से या फिर उनसे लोगों तक पहुंचाए, लेकिन हमारी और भी कोशिश रहेगी कि इन अखबारों को हम अपने लोगों तक का स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, मतलब अच्छे स्टैंडर्ड के साथ में हम लोगों तक का दे सके। तो इसके लिए जो प्रोडक्शन साइड है, जिसमें कंपोजिटर की है, पेज मेकर की है, इनकी भी जरूरत है। तो ये भी साथी अगर हमारे मित्र से तैयार हो जाते हैं, और जैसा कि हमें उम्मीद है कि ऐसे साथी भी तैयार हो सकते हैं, वो लोग पैसे देके खुद काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं, तो ऐसे भी साथी मिलेंगे कि ठीक है, हम महीने 2 महीने की छुट्टी लेकर घर में आएंगे और महीना 2 महीना या लगातार घर में काम करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। या हम में से बहुत से साथी ऐसे होंगे जिनके पास में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है, सर्विस में नहीं है, लेकिन मिशन में काम करने के लिए वो लोग तैयार है। तो ऐसे साथियों का भी इसमें काफी सहयोग हो सकता है। एडिटिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर हम न्यूज को या जो भी हमारे पास में हमारे अखबारों में से जिस बात को हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, अगर उसको हम सही ढंग से लिखे और उसका प्रोजेक्शन भी अगर सही ढंग से होता है तो हम उसको लोगों तक का समय पे पहुंचा पाएंगे। अभी आप सभी जानते हैं कि 1979 में, आज से 5 साल पहले, हमने 14 अप्रैल को दी ऑपरेशन इंडिया मंथली मैगजीन शुरू किया था, जिसकी शुरू की जो हमने कापियां छापी थी 2000, उसके बाद में आज हम 5000 से भी आगे बढ़ रहे हैं। और 1980 में 14 अप्रैल को ही हमने बहुजन संगठन अखबार शुरू किया था, उसकी भी कॉपी आज 6000 से भी ऊपर है। हमने इसी को 6000 तक का इसको इसलिए सीमित रखा क्योंकि इसको भी स्टैंडर्डाइज करके इसको काफी इसका सारा डेटा सेटअप जो बढ़ाने का है। तो मंथली से हमने शुरू किया, वीकली चलाया, और अब हम वीकली से आगे बढ़ के डेली न्यूज़पेपर के ऊपर में आ गए। और ये 3 डेली अखबार, एक नागपुर से और 2 दिल्ली से हमने शुरू भी कर दिया। जहां तक मंथली और वीकली अखबार का सवाल है, क्योंकि वो हफ्ते में एक बार निकलता रहा और महीने में एक बार निकलता रहा, तो इसलिए उसको तो हम किसी तरह से मैनेज करते रहे। लेकिन अब जो डेली अखबार करने वाले हैं, तो ये जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, ये अखबार चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर हमने एग्जिस्टिंग जो वर्तमान अस्तित्व में है और वेल एस्टैब्लिश्ड समाचार पत्र है, अगर हमने इनका मुकाबला नहीं करना बल्कि इनको पछाड़ना है, तो हमें भी अपने आप को उतना काबिल बनाना पड़ेगा कि हम उनको पछाड़ सकें। और इसके लिए हमें ऐसे साथियों की जरूरत है, या ऐसे साथी सामने आए जो कमिटमेंट के साथ में कि ठीक है, हम इसको करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि डेली अखबार चलाना, क्योंकि आप में से कई साथी जानते होंगे, वो हमारे अखबार को देखते हैं और जो दूसरे अखबार देखते हैं, तो शायद वो अपने दिल में ये कंपैरिजन भी कर ले कि भाई ये अखबार तो काफी स्टैंडर्ड का लगता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जैसे अभी इंडियन एक्सप्रेस का अगर हम नाम लेते हैं, तो इसको लगभग 30 साल से भी ऊपर हो गए, 40 साल से जो अखबार चला रहा है। आज अगर उसका जो स्टैंडर्ड है, वो लगते हाथी स्टैंडर्ड हम भी करना चाहते हैं उसका, लेकिन उसके साथ में अगर हम अपने आप को आज कंपेयर करें,
तो वो संभव नहीं हो पाएगा। या अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं, जो जिसको 100 साल हो गए, तो अगर 100 साल पहले वाले अखबार के साथ नहीं, तो अगर हम कंपैरिजन आज की हालत में अगर करते हैं तो वो भी मतलब सही बात नहीं होगी। हम एक समय के भीतर हमारे जो पब्लिकेशन है, हम उनको उस स्टैंडर्ड का बनाना चाहते हैं, उससे भी बढ़ के स्टैंडर्ड का बनाना चाहते हैं कि जिससे समाज के अंदर में ऐसी लहर पैदा हो जाए कि जिधर देखे उधर यही नाम लोगों को नजर आए और चारों तरफ में यही नाम नजर आए। सिर्फ अखबार में नहीं बल्कि मूवमेंट के अंदर में भी चारों तरफ यही नाम नजर आए। लेकिन वो स्टैंडर्ड का अखबार बनाने के लिए हमें अब सब साथियों की या उन साथियों की जरूरत है जो साथी कमिटमेंट के साथ में आगे आके अपने आप को ऑफर करना चाहते हैं। तो जिसमें एडिटिंग साइड है, जिसको संपादकीय कह सकते हैं, तो इसको चलाने के लिए जैसे न्यूज कलेक्ट करना है, उसको रिप्रोड्यूस करने का है, उसको प्रोजेक्शन करने का है, क्योंकि अखबार जो है, अखबार ये एक बहुत बड़ा हथियार है डेमोक्रेसी में, या जिसको हम गणतंत्र या जनतंत्र कहते हैं। तो ये लोकशाही के अंदर में हम तलवार और तीर कमान लेकर लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये जो डेमोक्रेसी की लड़ाई है, इसमें तीर कमान और तलवार लेकर या बंदूक लेकर लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, इसमें दिल और दिमाग को जीत कर लड़ाई लड़नी। तो जिनके दिल और दिमाग को हमने अपने साथ में लेने का है, अगर उनके दिल और दिमाग में हमने इस बात को नहीं घुसो दिया, इस बात को उनको मानने के लिए मजबूर नहीं किया कि आपके दिल और दिमाग की हमें क्यों जरूरत है, तभी हम उनके जो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हम जिसको बोल सकते हैं, तो उस इन्वॉल्वमेंट को हम तभी से क्यों कर सकेंगे जब उनके दिल और दिमाग को अपने साथ में कर सकेंगे। और दिल और दिमाग को अपने साथ करने के लिए ये अखबारों का या पब्लिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। ये जो पब्लिकेशन है, इनमें इनका हमारे जो समाज के साथी है या जो इस मिशन में आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं, जिनका हम सहयोग लेना चाहते हैं, ये तभी संभव हो पाएगा जब हम उनको दिली तौर पे या दिमागी तौर पे अपने साथ में ले पाएंगे। लेकिन दिली तौर पर और दिमागी तौर पर लेने के लिए उनके दिल और दिमाग को तैयार करना बहुत जरूरी है, और वो दिल और दिमाग को तैयार करने में पब्लिकेशन का सबसे बड़ा रोल है। और इसीलिए जो दिल और दिमाग को तैयार करने वाले साथी अपने आप को करना चाहते हैं या ऑफर करना चाहते हैं, तो वो साथी जितने बड़े पैमाने पे इसके साथ में आ जाएंगे, उतने जल्दी हम अपने मिशन को आगे बढ़ा सकेंगे। तो एक तो ये जो एडिटिंग का पॉइंट है, संपादकीय है, इसके लिए हमारे जो लेखक साथी है जो इसमें रुचि रखते हैं और लेख लिखने वाले हमारे साथी है, अगर उनका सहयोग मिलता है तो इसको आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। क्योंकि पिछले 5 साल से मैं और जिसका नाम मैंने अभी बताया था मिस्टर MP सिंह, वो साथी मेरे साथ में मिलकर इधर काम करते रहे। बीच में हमारे बाहर से भी कई साथी आकर, क्योंकि कभी ऐसा भी हो जाता है कि अगर मान लो किसी काम से मुझे कहीं जाना हो तो मुझे 2 इशू एडवांस में तैयार करके बहुजन संगठन के फिर जाना पड़ता है, तभी वो निकल पाता है। तो अगर बहुत से साथी अगर घर में पहले से तैयार हो जाए तो वो उस काम को देखते रहे, कोई और किसी काम को देख सकता है। लेकिन अभी तक का मुझे बड़े मतलब दुख के साथ में कहना पड़ता है कि अभी तक का कोई साथी ऐसा अपने आप को ऑफर करने वाला आया नहीं। हालांकि मैंने बार बार हमारे कई यूनिट के साथियों से कहा है कि भाई आप कोई आदमी तैयार करके इधर में भेजो ताकि इसको चलाने में हमें आसानी हो सकती है। तो यही जो बातें हैं जिसको मैंने वर्किंग यानी मतलब उसका काम करते हुए जो अनुभव किया, क्योंकि उसको लिखना है, पेपर निकालने का मतलब यह है कि उसको लिखना है। तो जैसे अभी कोई समाचार हिंदी में आता है, उसको अंग्रेजी में करने का है, तो हिंदी से अंग्रेजी करने के लिए भी आदमी की जरूरत है, अंग्रेजी से हिंदी में करने के लिए भी आदमी की जरूरत है, उसको सही ढंग से लिखने की जरूरत है, उसका प्रूफ रीडिंग करने का है, उसका गेटअप सेटअप देखने का है, उसको सही ढंग से लोगों के सामने प्रोजेक्ट करने का है कि अपनी बात हम अपने लोगों तक बता सके। तो ये कुछ पहलू है जो मैंने अपने यूनिट के कई साथियों से पर्सनल डिस्कशन में मैंने उनके साथ में बात की है, और अभी आप सब लोगों को भी मैंने ये जो डिफिकल्टीज है इसके बारे में जानकारी दी है। तो अभी हम वीकली और मंथली से बढ़कर मंथली और वीकली से आगे बढ़कर अभी हम डेली पे आ रहे हैं। और जैसा कि कल साहब ने आपको बताया है 21 तारीख से हमने फिर इसको बड़े पैमाने के ऊपर में शुरू करना है ताकि फिर ये कभी बंद ना पड़े। तो 2 अखबार चलाने के हैं, डेली अखबार चलाने के हैं, हिंदी और इंग्लिश।
اور وہ بھی 4-4 पेज के होंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि मतलब कितने आदमियों की जरूरत है, क्योंकि जो कमर्शियल अखबार है, जो सेठियों के अखबार है, इसमें तो 100 आदमी काम करते हैं। अगर 4 पेज की मैं अगर बात करूं तो 4 पेज को चलाने वाले 16 आदमी तो उनके साथ में ऐसे हो गए कि जिनका काम उस अखबार को एक पेज को 4-4 आदमियों में देखने का होगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो साथी जिनका हम सहयोग लेना चाहते हैं, तो वो साथी अगर कम भी है संख्या में, तो वो इतने आदमियों का मुकाबला कर सके कि जो सेठियों के आदमी भी नहीं कर पाए। इसलिए मैं आप सब साथियों से निवेदन करूंगा और अनुरोध भी करूंगा कि आप में से जो साथी इस समाचार पत्र के या जर्नलिज्म के साइड में इंटरेस्टेड भी है और तैयारी भी है, तो ऐसे साथियों अगर अपने आप को ऑफर करें। बाद में ग्रुप डिस्कशन में साहब उनके साथ में अलग से बात करेंगे। तो अगर ऑफर करते हैं तो उनको तैयार करके हम आगे काम को बढ़ा सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने बार बार नॉर्थ इंडिया के साथियों का नाम लिया, तो कोई बुरा न मान ले कि भाई ये नॉर्थ इंडिया के साथी वो क्यों वो कह रहे हैं, क्योंकि हिंदी भाषा का अखबार है और ज्यादातर जो साथी जानने वाले हैं वो नॉर्थ इंडिया में है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि वो साथी बुरा नहीं माने। अगर उनको बुरा लगता है तो मैं उनसे माफी भी मांग लूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि उनका सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी में हम ये चाहते हैं कि जो हिंदी का अखबार है वो इतने स्टैंडर्ड का अखबार हमारे लोगों के हाथ में पड़ती है। क्योंकि आज जो हमारा बहुजन संगठन निकलता है, मैं स्वयं भी उससे खुश नहीं हूँ, क्योंकि जो स्टैंडर्ड का अखबार हम देना चाहते हैं वो स्टैंडर्ड का अखबार अभी हम नहीं दे पाए। लेकिन मेरी और हमारे जो संपादक अखबार के राम जी, इनकी भी यही तमन्ना है कि हम जो अपने लोगों के हाथ में दे तो एक आदर्श बात है, क्योंकि हम ऐसे आदर्श समाज के अंदर में प्रस्तावित करना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी उनको देखने के बाद में उस आदर्श के बारे में सोचे कि ये हमारे सामने लोगों ने आदर्श रखा है। तो चूंकि अभी हम बनाने की हालत में है, इसलिए अभी से हमने इसको एस्टैब्लिश करने का है। तो साथियों, मैंने आपका काफी समय लेके जो डिफिकल्टीज मैंने अनुभव की और भी साथियों ने जो मेरे साथ में अनुभव की, उन बातों को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। और मुझे भरोसा है कि आप इसके ऊपर में गौर से सोचेंगे और जो कई यूनिट से हमारे साथी यहाँ बैठे हुए, तो वो साथी उसके ऊपर में विचार करके ये फैसला करेंगे कि उनके सहयोग को वो किस स्तर पर कितने समय के लिए और कितने जल्दी वो दे सकेंगे। इसी बात के साथ में मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को पूरा करता हूँ। मिस्टर खोबरागड़े ने आपको दिल्ली से निकलने वाले हमारे पब्लिकेशंस के बारे में कई पहलू से बताया और आने वाले समय में जब मंथली और वीकली से बढ़कर डेली न्यूज सर्विस और उसके साथ साथ स्पेशलाइज्ड न्यूज सर्विस दिल्ली से बड़े पैमाने के ऊपर बढ़ने वाली है, तो उसके लिए मुट्ठी भर लोगों की नहीं बल्कि हिंदी स्पीकिंग एरिया, जो कि बहुत बड़ा एरिया है, इंडिया का सबसे बड़ा एरिया है, तो उस सारे एरिया से हम आशा रख सकते हैं। उसके साथ साथ दिल्ली जो है वो नेशन का कैपिटल है, हमारे मुल्क का कैपिटल है, राजधानी है, तो इसलिए सिर्फ हिंदी स्पीकिंग एरिया से नहीं बल्कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के पब्लिकेशन भी दिल्ली से निकलते हैं और आने वाले समय में डेली पेपर भी आपके सामने है और भी इंग्लिश के कई पब्लिकेशन हो सकते हैं। और इसके साथ साथ और मैनेजमेंट के अगर लिखने पढ़ने की बात को भी छोड़ें तो मैनेजमेंट है और फाइनेंशियल कमिटमेंट है, पैसे की बात है, तो इसके बारे में भी हमें जब दिल्ली की बात करते हैं तो हमें देश के कैपिटल की, देश की राजधानी की बात करते हैं, तो देश के कोने कोने से तो उसके बारे में कुछ कमिटमेंट होना चाहिए, ऐसा मेरा अपना ख्याल है। और बार बार मैं आप लोगों से बोल चुका हूं इसके बारे में और ग्रुप डिस्कशन में और भी ज्यादा इसके बारे में चर्चा होगी। अब हमारे दूसरा सेंटर जो चंडीगढ़ से जो पंजाबी के पब्लिकेशन निकलते हैं, तो
उससे पहले काफी लंबे अरसे तक तो मैं काफी दुखी था, क्योंकि 1000 से ज्यादा मेंबरशिप नहीं बढ़ रही थी काफी लंबे अरसे तक। लेकिन काफी सोच विचार करने के बाद, और खासकर जब पंजाब के ऊपर वैसे तो हालात तो काफी लंबे अरसे से खराब हैं, लेकिन प्रेसिडेंट रूल लगने से पहले तो जब पंजाब के ऊपर काफी कोशिश की गई लगभग 2 महीने के समय में, तो उसके बाद पब्लिकेशन के बारे में और सोचकर 3 महीने के समय में मुझे जानकर बड़ी खुशी तो हुई। खुशी के साथ साथ अचंभा भी हुआ कि हमारा पंजाबी का पब्लिकेशन जो 1000 तक नहीं पहुंच रहा था, तो 1000 से जंप करके वो 6000 तक पहुंच गया। तो 3 महीने में जब वो 6000 तक पहुंचा तो उससे तो मैंने कुछ सबक सीखा है, और मैं समझता हूं कि सिर्फ मुझे ही नहीं, अगर आप सब लोग मिलकर मुझे ही सबक सिखाते रहे तो भी बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी मेरे लिए। तो इसलिए तो हम सब लोगों ने सबक सीखना है, और सबक सीखकर उससे लाभ उठाकर हमें मिशन को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए हम सब लोग उससे सबक सीख सकें और बात को आगे बढ़ा सकें। तो इसलिए मैं सरदार तजिंदर सिंह से रिक्वेस्ट करूंगा, तो जिनका इस पब्लिकेशन से गहरा संबंध है, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा तो वो अपनी बात चंद मिनटों में आपके सामने रखें। सरदार तजिंदर सिंह। तो जैसा अभी श्री काशीराम जी ने बताया है कि जिस किस्म की चेंज पंजाबी पब्लिकेशन